Good morning, dear students. As you know, we are learning the time chapter and we are learning the topic that is a telling time with 5-minute interval. We are learning that 5-minute interval. पहले हमने सीखा था 15-minute interval. Means we are learning the whenever your minute hand is on the 3, that is a quarter past of the hour. Then whenever your minute hand is on the 6, means you have to use the half past. Whenever your minute hand is on 9, then you have to use the quarter to, and when is on the 12, so you have to be write down the o'clock. Now we have to be do the 5-minute interval. So you can see from between the 12 and 1 there are the 4 lines, and starting from 1, 2, 3, 4 and the 5. So this is the 5-minute. Like that, whenever you are adding the 5, so it will become like this: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 on the 12. You can say, or you can say 0, 0. So 60 minutes whenever on 12, whenever on the 1 there is a 5-minute, whenever on 8 there is a 40-minute, whenever on the 8 there is a 40-minute, whenever on the 4 there is a 20-minute. तो इस तरह से सारे नंबर पे मिनट्स फिक्स होते हैं. So whenever your minute hand is on, whenever your hour hand is on the 8, अगर आपका आवर हैंड 8 पे होता है और अगर आपका मिनट हैंड 2 पे होता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है. यू हैव टू बी डिवाइड द क्लॉक लाइक दिस, एंड on the right hand side that will be a past, and on the left side this is a 2 past. So you can write this: the left hand side of the clock is time tell in the 2, and on the right side you can tell the time in the past. So whenever your hour hand is on the 8 and your minute hand is on the 2, so the time is the 8:10. टाइम है उसका 8:10. तो आपको टाइम किस तरह से लिखना है? यू हैव टू बी राइट डाउन द टाइम इन द पास्ट. सो आपको पहले पास्ट में सेंटर में लिख रही हूँ, उसके पहले आप आवर जो होगा उसको लास्ट में लिखोगे पास्ट 8. नाउ 10 यू कैन सी 10 मिनट्स, तो आपको यहाँ पे लिख देने हैं 10 मिनट्स. 10 मिनट्स पास्ट 8, 10 मिनट्स पास्ट 8. इस तरह से आपको टाइम लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका आवर हैंड 8 पे है और मिनट हैंड जो है वो 9 पे है. अगर आपका मिनट हैंड 9 पे होता है मतलब कि 50 मिनट्स हुए. सो आवर हैंड बिटवीन 8-9 के बीच में होगा, तो आप इस तरह से लिखोगे टाइम 8, 10 का मतलब होता है 50. सो टाइम इज़ द 8:50. Right, so now you can you can see on the right, this is on the left side, so you have to be write down the time in the 2. आपको वो 2 में टाइम लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपने जैसे सेंटर में पास्ट लिखा था वैसे आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, और बिकॉज इट्स ऑन द लेफ्ट साइड, सो एंड यू आर यूजिंग द 2, सो आपका जो आवर का वो नंबर होगा उसका नेक्स्ट नंबर लेना है. पास्ट में वही नंबर आएगा, 2 में नेक्स्ट नंबर मतलब कि 9 आएगा. हियर इज़ द 50. अभी आपको मिनट्स किस तरह से लिखनी है? आपको 60 में से जो भी नंबर होगा उसको माइनस कर देना है. 60 मीन्स अ टोटल नंबर. 0, 6 - 5, 10. सो आप ऐसा लिखोगे 10 मिनट्स टू 9. 10 मिनट बाकी है 9 के लिए, तो सेम हुआ, दोनों सेम ही है. 10 मिनट्स पास्ट 8 मतलब 8 होके 10 मिनट्स हो चुकी है, और 10 मिनट्स टू 9 इसका मतलब क्या हुआ? 9 होने के लिए अभी 10 मिनट्स बाकी है. सो लाइक दैट यू हैव टू बी राइट डाउन द टाइम. सो नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज 8.3 फ्रॉम दैट. Write the time shown in the clock in 2 different ways. You can see here there is a 1 hour hand and the minute hand and the second hand. We don't have to be follow the second hand now. We have to be only focus on the hour and the minute hand. Hour hand is between the 7 and 8 and the minute hand is on the 5.
5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस बुक में कितने मिनट हुए, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25 मिनट्स. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू बी राइट डाउन द 25 हियर एंड हियर यू हैव टू बी राइट डाउन द 7, क्योंकि वो 7 8 के बीच में है तो आपको यहाँ पे 7 लेना है. 7:25. अभी आप टाइम कैसे लिखोगे, फर्स्ट आपको दैट मिनट हैंड इज ऑन द राइट हैंड साइड, सो आपको यहाँ पे पास्ट का यूज़ करना है. तो मैंने पहले लिख दिया पास्ट और 7, पास्ट 7 आवर. नाउ यू हैव टू बी राइट डाउन 25 मिनट्स past 7 like this. Now going to solve the B is your homework. Here you can see the minute hour hand is between 3 and 4. hour hand जो है हमारा वो 3 और 4 के बीच में है, और हमारा मिनट हैंड जो है वो 8 पे है. 8 का मतलब कितने मिनट्स होंगे आप यहाँ पे देख सकते हो. 8 का मतलब होता है 40 मिनट्स. सो पहले ही आप लिख दोगे उसको 40 मिनट्स, और 3 और 4 के बीच में है तो इसलिए आप स्मॉल नंबर चूज करोगे 340. नाउ यू कैन सी द मिनट हैंड इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आपको यहाँ पे 2 का यूज़ करना है. ओके, यहाँ पे 3 है, 2 आया तो 3 की जगह पे आपको लिखना है 4. नाउ 40 मिनट्स को आप कैसे लिखोगे, 60 माइनस 40, 02. सो यू कैन राइट डाउन 20 मिनट्स टू 4. इस तरह से आपको टाइम लिखना है. नाउ नेक्स्ट D, 7 आवर हैंड इज द ऑन द बिटवीन द 7 एंड द 6. मैं एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो वो यहाँ पे आया, और हमारा जो मिनट हैंड है वो 10 पे है. तो आप टाइम किस तरह से लिखोगे, 10 का मतलब होता है 50, और 7 और 6 के बीच में है इसलिए आप 6 लोगे यहाँ पे 6:50. सो टाइम इज द 2. आपको राइट हैंड साइड पे तो 2 लेना है, यहाँ पे 7. नाउ 60 माइनस 50, 0, 6 माइनस 5, 1. सो यू कैन राइट डाउन 10 मिनट्स to 7. Sorry for the background disturbance. And E and F is your homework. आपको ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में करना है, नोटबुक में नहीं करना है. Second, draw the hands of the clock to show the given time. 3:20. So 3 hour hand and 20 मतलब कि 4. So minute hand 4 पे आएगा. Next 1:05. This is your homework. You have to be done by yourself. 5:55. So 55 के लिए तो 11 आएगा, बट देर इज़ अ 5. सो आपको जो मिनट आपका अवर हैंड होगा वो 5 और 6 के बीच में रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चलेगा कि वो 55 पे है. नाउ नेक्स्ट 7:45. 45 का मतलब होगा 9, एंड यू हैव टू बी टेक the our hand between the 7 and 8, near to the 7 and distance from the 8. बट वो 55 पे होगा तो वो ज़्यादातर 6 के पास होना चाहिए. Now rest of is your homework. This thing you have to be solved by yourself. Now I am going to end the video. Next time we'll learn about the AM and the PM. Bye everyone. Have a good day.